Learning about blood. Now in blood there is RBC, there is WBC, and there is platelets. We have learned about the platelets, we have learned about the mechanism of blood clotting, we have learned. Did we learn about the RBC? Are you sure? We learned about the RBC, everything. 120 days लगता है प्रोडक्शन करने में, RBC का शेप, साइज, कितने RBCs होते हैं, on everything is learned. Huh? I think we learned that what is the importance of transport system in our body, what is the importance of transport or circulatory system in our body, what kind of fluids are there in our body, how transport occurs. We have learned about the arteries and the veins, we have learned about the arterioles and the venules, we have learned about blood capillaries, we have learned about blood vessels, we have learned about the functions of blood, and we have learned, I forgot, I told you about RBC. I remember that platelets and platelet ka function and the mechanism of blood clotting I told you completely, that I remember. But about RBC I told you in details or not, about RBC I told you in details or not, that I forgot, you know. That I seriously forgot. However, it doesn't take much time to talk about RBC. RBC are very small. First of all, 7 micron, okay, in diameter, and RBCs, there are 5 million, I think I told, there are 5 million, this point I told, there are 5 million RBC in 1 millimeter cube of blood. Oh my god, this is quite a huge number, isn't it? So that is the thing. RBC contains hemoglobin pigment. RBC contains hemoglobin pigment. Yes or no? RBC contains hemoglobin pigment, and there is hemoglobin pigment. There is one heme part, HAEM, heme, and there is one globin part, globule part or globin part. This is the iron part, this is the protein part. I think I told this. Right or wrong? Hemoglobin is denoted as Hg. When oxygen is transferred to blood, oxygen actually binds with hemoglobin. Hemoglobin plus oxygen gives HbO2. This is the oxygenated blood, hemoglobin containing the oxygen, and when it goes into the tissue, the hemoglobin gets separated from the blood. Right or wrong? And it gets used up by the tissue. When it goes, it remains like this in the arteries. Arteries mein blood is bright red, veins mein blood is dark red. I think I told all these things. Yeah, I remember now. So hemoglobin plus O2. So hemoglobin gets separated from oxygen in the tissues. Then in the tissues CO2 is produced, hemoglobin, carboxy hemoglobin is produced. Also this comes through the veins and goes into the lungs, and also hemoglobin is carbon dioxide is also transported as HCO3 minus in the is transported by the as HCO3 minus in the plasma. As hemoglobin is transported, how? Hemoglobin is transported by addition of oxygen to the hemoglobin through the arteries. But when through the arteries it goes into the tissue, artery से जाके टिश्यू में ऑक्सीजन यूज हो जाता है. ऑक्सीजन यूज होने के बाद जो hemoglobin है, that hemoglobin gets bound with the CO2. In that way it comes back, CO2 comes back, goes into the lungs and goes out of our body. But however, this is not the only way how carbon dioxide is transported back to the lungs. It is also transported as bicarbonate ion. You should remember that thing. So this is the thing. And RBCs are produced where? RBCs are produced in the bone marrow like any other. Okay, so WBCs are produced from the yellow bone marrow, RBCs are produced from the red bone marrows. Okay, and RBC do not have any nucleus. RBC do not have any nucleus. RBC do not have any nucleus, do not have any mitochondria, do not have any endoplasmic reticulum. Sir, kisui to nahi. Nothing is there in this cell. Yeah, it doesn't have anything in the cell. The reason is न्यूक्लियस नहीं रहने की वजह से उसका ऐसे बाइकॉन्केव शेप हो जाता है, जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ता है. सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से हेमोग्लोबिन पिगमेंट और ज़्यादा रह सकता है इसमें. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is also not there because of the same reason. Because एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहने से सेल थोड़ा सा फूल जाता है, मोटा हो जाता है, तो वो ब्लड कैपिलरी से अच्छे से नहीं जा पाता. ब्लड कैपिलरी बहुत ये होता है ना, बहुत थिन होता है ना ब्लड कैपिलरी, ब्लड वेसल नहीं, ब्लड कैपिलरी. तो उसमें से जाने के लिए आरबीसी को थोड़ा सा थिन होना मांगता है. ये एक चीज़ है. और
माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं बोलते, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है और रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज़ हो जाता है। तो आरबीसी खुद अगर रेस्पिरेशन करता तो सारा ऑक्सीजन खुद ही यूज़ कर लेता, तो दूसरे टिश्यू के लिए नहीं ले जा पाता, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया उसमें नहीं है। समझ में आ गया? इज दिस इंटरेस्टिंग और नॉट? डिड यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स? RBCs are destroyed in the liver and the spleen, and RBCs are lifespan of RBC is 120 days. Is this clear to you? Now let us learn about WBC. I don't know I told about RBC or not, but again I told. Now let us learn about WBC. WBC are two types. Basically, agranulocytes which have granules in their cells, granulocytes which do not have any granules in their cells. Okay, agranulocytes are again of two types. They are three types. Eosinophil which are stained by acid stain, मतलब माइक्रोस्कोप में देखने के लिए जो स्टेनिंग करते हैं उससे एसिड स्टेन यूज होता है। बेसोफिल बेसिक स्टेन से स्टेन होता है। न्यूट्रोफिल न्यूट्रल स्टेन से स्टेन होता है। नंबर 1 ग्रैनुलोसाइट्स। दीज आर तरीका। अरे ये क्यों मिटा रहा हूं, मैं पागल हो गया हूं यार, ये क्यों मिटा रहा हूं? देखो तो दीज आर ग्रैनुलोसाइट्स and then there is agranulocytes which do not have granules in their cells. These have granules in their cells. The granules have granules. Non-granular agranulocytes are मत समझो। Number 1 is known as, अरे समझ के कौन बड़ा आदमी हुआ है? lymphocytes, and number 2 is monocytes. अरे मेरी अम्मा, WBC दो तरीके से डिवाइड हो सकता है, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रानुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स मतलब सेल के अंदर से ग्रैनुल्स है, ठीक है। और एग्रानुलोसाइट्स मतलब ये सेल है, सेल के अंदर कोई ग्रैनुल्स नहीं है, साफ सेल है। तो एग्रानुलोसाइट्स दो तरीके का होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और ग्रैनुलोसाइट्स तीन तरीके होते हैं, यूसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ठीक है। एग्रानुलोसाइट्स के अंदर कोई ग्रैनुल्स नहीं होता। अच्छा, ये बात है। सबका काम है, WBC का काम ही है प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, protection from foreign body that enters in our foreign particles or foreign bacteria, viruses that enter in your body. Understood? Enters in our body. तो ये है प्रोटेक्शन की बात। तो हाँ, ये पांचों सेल्स मिलके करते हैं। एक्चुअली लिम्फोसाइट का भी दो टाइप्स है, एग्रानुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट। समझ गई? ओ प्यारी, समझ गई। ओके, सो ईओसिनोफिल कौन है? ईओसिनोफिल आर दी का जल्दी बहुत कुछ बोलना है। हाँ, ये लाइट का ये इधर तरीका, हाँ ऐसे करो, जब ये समझा रहा हूँ ऐसे करो। ईओसिनोफिल मतलब वो जो एसिड स्टेन से स्टेन होता है, मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए तेरे को स्टेनिंग करना पड़ेगा ना, तो एसिड स्टेन से जो स्टेन होता है वो यूसिनोफिल, बेसिक स्टेन से जो स्टेन होता है बेसोफिल, और न्यूट्रल स्टेन से जो स्टेन होता है न्यूट्रोफिल। आया बात समझ में? ग्रैनुलोसाइट्स का एक विचित्र बात यह है कि इनके जो न्यूक्लियस होते हैं ना, न्यूक्लियस लोब्ड होते हैं ऐसे, नहीं मत करो, न्यूक्लियस लोब्ड होते हैं ऐसे, बाइलोब्ड, या फिर न्यूक्लियस लोब्ड होते हैं ऐसे, ट्राइलोब्ड। लोब हो गया है न्यूक्लियस में, ठीक है। लालच नहीं, वो वाला लोब नहीं, लोब, एलोबी, लोब मतलब थैला बनना, थैला जैसा, देख, दो थैले जैसा बन गया, तीन थैले जैसा बन गया, ऐसा होता है। 2, 3, 4 लोब्स होते हैं। जैसे यूसिनोफिल में 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। फिर न्यूट्रोफिल में 3 से 4 लोब्स होते हैं, और बेसोफिल में भी 3 से 4 लोब्स जैसे होते हैं, या 2 लोब्स ना, सॉरी, बेसोफिल में 2 लोब्स होते हैं। अच्छा, इन लोगों का काम क्या है सर? ये यूसिनोफिल ले ले, बेसोफिल ले ले, न्यूट्रोफिल ले ले, सब देख। बेसोफिल जो है, बेसोफिल ना हिस्टामिन बोल के केमिकल रिलीज करता है। क्या केमिकल रिलीज करता है? हिस्टामिन बोल के केमिकल रिलीज करता है, जो कि हम लोगों को इन्फ्लामेशन कराता है। सर ये इन्फ्लामेशन क्या है? अच्छा, इन्फ्लामेशन क्या है मैं बताता हूँ। सोचिए तेरा हाथ है, हाथ में पीपरा काटा है, चाकू घुसा है, कुछ भी हुआ है, चींटी काटा है, या कुछ भी एसिड फॉरेन पार्टिकल तेरा घुसा है, तो लाल होके फूल नहीं जाता, उसी चीज़ को इन्फ्लामेशन कहते हैं।
सर लाल होके फुल क्यों गया? लाल होके फुल इसीलिए गया क्योंकि जहाँ पे वो फॉरेन पार्टिकल घुसा है वहाँ पे WBC का पहुँचना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मात्रा में। पहुँचता तो सभी जगह है लेकिन ज़्यादा मात्रा में पहुँचना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है मैं तुम लोगों को बताता हूँ। देखो ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल ना यहाँ से सिकुड़ जाता है, और क्योंकि यहाँ पे सिकुड़ के यहाँ पे बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है जिससे ब्लड ज़्यादा अमाउंट में जाए। तो ब्लड ज़्यादा अमाउंट में जाएगा तो ब्लड वेसल्स भी ज़्यादा ब्लड WBCs भी ज़्यादा अमाउंट में पहुँचेगा। ज़्यादा अमाउंट में पहुँचेगा तो फाइट कर पाएगा। कैसे फाइट करेगा वो बाद में बताता हूँ। फाइट कर पाएगा इसीलिए ना, क्योंकि ज़्यादा ब्लड जा रहा है तो ये जगह में फूल जाता है और लाल हो जाता है, और ये सब केमिकल वगैरह रिलीज होता है बल्कि वहाँ से खुल जाता है। यही चीज़ इन्फ्लामेशन है। सर ये बॉडी के अंदर भी होता है, हाँ, जैसे बुखार आना इन्फेक्शन की वजह से, ये भी इन्फ्लामेशन ही है। इन्फ्लामेशन का एक तरीका का है। अंदर इन्फ्लामेशन अंदर बॉडी के अंदर ऑर्गन में होता है, हाँ होता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है। सर वो कैसे पता चलता है? वो डॉक्टर को पता चलता है तुम्हारा सिम्टम्स देख के, या फिर कभी कभी करता है कि कोई अल्ट्रासोनोग्राफी या कोई कैमरा बॉडी के अंदर घुसा के, जैसे कि स्टोमक का इन्फ्लामेशन हो गया तो इंडोस्कोपी करते हैं, कैमरा अंदर घुसा के देखते हैं कि लाल हो गया फुल, हाँ, कोलोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी, ये सब करते हैं कि अल्सर हुआ है कि नहीं, इन्फ्लामेशन हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन्फ्लामेशन बाहर भी दिखता है, लाल होकर फूल जाता है, वही चीज़ है। अच्छा, WBC का पहुंचना इंपॉर्टेंट क्या है? WBC क्या करता है? सोच की एक बैक्टीरिया है, सोच की एक बैक्टीरिया है, चुन्नूसा मुन्नूसा बैक्टीरिया, लेकिन तेरा कल्याण कर सकता है। कल्याण मतलब तेरे को मार भी सकता है, बहुत सारे अमाउंट में घुसा है। WBC यहाँ पे जाता है, ठीक है, ये WBC है। WBC इरेगुलर शेपेड होता है, याद रखना। WBC क्या शेपेड होता है? इरेगुलर शेपेड होता है। जाता है इस मुन्नू से बैक्टीरिया के पास जाके, सोच बैक्टीरिया यहाँ पे है, यहाँ से ना वो क्या करता है, अपना स्यूडोपॉड बना के, ऐसे बना के अंदर इनगल्फ कर लेता है इसको, जैसे एमीबा न्यूट्रिशन लेता है ना, कर लेता है। जैसे इसके अंदर चला गया, यहाँ पे क्या करता है, लाइजोसोम्स बहुत एक्टिव होते हैं WBC के। लाइजोसोम्स में क्या होता है, लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, याद है, क्लास 9th में पढ़े होंगे। लाइटिक एंजाइम्स होते हैं लाइजोसोम में, जो ब्रेक कर सकता है, थोड़े थोड़े करके रिलीज करके लाइजोसोम इसे सेल ऑर्गेनेल के अंदर रिलीज करके इस बैक्टीरिया को खात्मा कर देता है। सर बड़ा मजा आ रहा है। ये कौन करता है? बेसोफिल तो ये नहीं करता। बेसोफिल एक्चुअली हिस्टामिन रिलीज करके इन्फ्लामेशन बढ़ाता है। ईओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल दोनों मिलके ये करते हैं। ईओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल दोनों मिलके ये करते हैं। इज दिस क्लियर टू यू? सर ये करके फायदा क्या? बैक्टीरिया मरता है तो उससे हम तो ऐसे ही बच जाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं बचते। क्यों बोलो तो? क्योंकि बैक्टीरिया बहुत घुसता है, बहुत सारा। सारे WBC का सारे बैक्टीरिया को मारना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए तब काम आता है एग्रेनुलोसाइट्स। वो लोग क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया का पहचान करते हैं, उस बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को पहचानते हैं, उसके एंटीबॉडी को, एंटीजन को, उसको एंटीजन के रूप के में पहचान के। लिम्फोसाइट्स दो तरीके का होता है, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट। क्या क्या बोला मैंने? T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट उसका पहचान करता है, और B लिम्फोसाइट्स को बोलता है कि भाई इस तरीके का बैक्टीरिया हम लोगों को परेशान कर रहा है। तो B लिम्फोसाइट एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना देता है, और जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बैक्टीरिया को फाइट करता है। जो कोरोना के बाद भी ये सब बातें सुने होंगे। इज दिस क्लियर? एंटायर फंक्शन क्लियर? मोनोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है? मोनोसाइट्स भी ये करता है, फैगोसाइटोसिस करता है। मतलब अभी जो इनगल्फ करने वाला, जो यूसिनोफिल करता है, जो न्यूट्रोफिल करता है, वही मोनोसाइट करता है। बेसोफिल इन्फ्लामेशन कराता है, वहाँ पे ज़्यादा पहुँचाता है, और लिम्फोसाइट एंटीबॉडी तैयार करने में हेल्प करता है। समझ में आया? तो मोनोसाइट्स क्या करता है? मोनोसाइट्स भी फैगोसाइटोसिस करता है, फैगोसाइटोसिस। आया समझ में? WBC का फंक्शन समझ में आया? पता है WBC अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे तो उसको कहते हैं ल्यूकोमिया। शायद ये सब चीज़ें मैंने तुमको पहले भी बताया है। ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं ल्यूकोमिया, कम प्रोड्यूस है ल्यूकोपेनिया, दोनों कैंसर है। RBC ज़्यादा प्रोड्यूस है इराइथ्रोमिया, कम प्रोड्यूस हो जाए इराइथ्रोपेनिया, दोनों कैंसर है। समझ में आया? प्लेटलेट का कैंसर अभी नहीं चाहिए तुम लोगों को, छोड़ो। तो ब्लड कैंसर में RBC का भी कैंसर हो सकता है, WBC का भी। कैंसर मतलब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ज़्यादा कम, ठीक है। ज़्यादा में क्या करते हैं? निया, और कम में पेनिया, ठीक है। इराइथ्रोसाइट, इसलिए RBC का ठीक नाम क्या है? इराइथ्रोसाइट। इराइथ्रोमिया मीन ज़्यादा RBC, इराइथ्रोपेनिया कम RBC, WBC ज़्यादा, ल्यूकोमिया, WBC कम, ल्यूकोपेनिया। तो फैगोसाइटोसिस, इन्फ्लामेशन, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, तीनों सीख गया। समझ में आया कि नहीं आया? इज दिस क्लियर टू यू? अंडरस्टूड? हाँ? अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग वगैरह ये। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं ब्लड ग्रुप के बारे में बताऊंगा, फिर मैं हार्ट में चला जाऊंगा। बंद कर, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ब्लड